हेलो हाय एस्पिरेंट्स, दिस इज वैभव प्रकाश, अनअकैडमी क्लैट educator। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि सभी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर 2022 इंपॉर्टेंट होगा। देखो, लीगल करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे फ्रॉम वेयर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। सो इफ आई पुट यू और इफ आई से दैट जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं, so we only look at current affairs, right? Current affairs from the perspective of international affairs की, रशिया यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है, सार्क समिट में क्या हो रहा है ना, COP27 में क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, या फिर इंडियन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है। सो इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंडियन पॉलिटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। बट यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड दैट यू आर राइटिंग अ लॉ एंट्रेंस एग्जाम, और लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये भी देखा जाता है, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कितना ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हो फॉर द लीगल वर्ल्ड, राइट? सो इसीलिए they might ask you some current affairs questions specifically from the legal world. So in this video we are going to discuss some very very important legal current affairs. Like I said, my name is Vaibhav Prakash. I'm a National Law University Ranchi alumnus of 2011-2016, and I have been training students since the last 5 years and have successfully trained more than 2,000 plus students for various competitive law entrance examination. I'm a plus verified educator at Unacademy, and I'm also a Masters in Law scholar for this particular year. At Unacademy आप मुझसे 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने आ सकते हो: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स एंड ऑफ कोर्स लीगल एप्टीट्यूड। ये 4 सब्जेक्ट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो Unacademy में, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो। The best way for us to stay in touch and be in connect with each other is Telegram. So this is my Telegram channel का ID. आपको ये टेलीग्राम चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, एंड द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज वैभव प्रकाश अनअकैडमी लॉ। सो यू कैन जॉइन दिस पर्टिकुलर चैनल। यहाँ पे आपको मेरी स्केड्यूल जो होती है डेली की क्लास स्केड्यूल वो मिल जाएगी, and also if in case you would want to talk to me about any questions that you might have, so I will be able to help you out in that regards. Now before we actually start discussing what हमें बात करनी है, let us also talk about how can you prepare for your law entrance examination and how Unacademy can help you do that. So there are two ways in which Unacademy will help you. One is the free classes, the free resources that you can utilize from Unacademy through YouTube or the special classes. The second way of doing is by purchasing a subscription and joining a particular batch. Now, Unacademy presents two types of subscriptions. Basic fundamental of both the subscription is to provide you a structured course, so you don't have to jump from one place to another, finding out and filtering out what is the important resource that you should be referring to. So आपको एक structure मिलता है जब आप एक batch join करते हो, कहाँ से start करना है, कहाँ पे end करना है. This is something where Unacademy helps you out. Then of course you have daily classes, live tests and quizzes. But apart from that, iconic subscription की अगर बात करें तो you also get one-on-one live mentorship, you get a live doubt solving support, and you of course get a priority in class to raise your hand. मेंटरशिप प्रोग्राम की बात करें, आप अपने लैंग्वेज में अपने मेंटोर से बात कर सकते हो, अपने गाइड से बात कर सकते हो, डाउट सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हो, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एंड फीडबैक ले सकते हो, स्टडी प्लान बनवा सकते हो. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स Unacademy का iconic subscription will help you, and your mentor will help you. Now, needless to say, subscription है, so you'll have to purchase it. Plus subscription and iconic subscription, they are not very very costly. They are very economical. अगर आप देखोगे 6 months का plus subscription is 24,000. 6 months का iconic subscription is 27,000. So there's just a 3,000 of there's just a 3,000 का difference between the subscriptions. One very important thing is that if you use my referral code, which is VAI10, तो आपको इस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है? So you stand to save
10% ऑफ वॉट एवर यू शेल. आप जब भी सब्सक्रिप्शन खरीदो तो आप मेरा रेफरल कोड ज़रूर यूज़ करो अगर आपको अच्छा लगे. इट विल मीन अ लॉट टू मी एज वेल, एंड अ थैंक यू इन एडवांस. सो आप 10% जो है वो सेव कर सकते हो अपने सब्सक्रिप्शन कॉस्ट पे. अगर आपको कोई भी बैचेस से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, so you can call up on this number. This is my Unacademy Teams number, which is 7825860504. They will surely help you out with all your questions. Okay. Unacademy is also presenting with self-analysis series for different subjects like logic, English, math, current affairs, and legal reasoning. जिससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको किस तरह से एनालिसिस करनी चाहिए अपने प्रेपरेशन की. There are multiple batches. ये एक लॉन्ग टर्म बैच है CLAT 23 एस्पिरेंट्स के लिए, जो लोग एग्जाम लिखेंगे दिसंबर ऑफ 2022 में. CLAT एग्जामिनेशन दिसंबर 22 में होना है, तो उनके लिए जो है ये एक बैच जो है स्टार्ट हुआ है, हो रहा है 6 of April से. So this is both Hindi and English. Multiple educators teaching you all the different subjects. In this particular batch, you will get access to mock test, sectional test, practice and revision tests, everything. Okay. Then you also have a batch for CLAT 2022 aspirants, जिनका examination जो है वो जून में है, जून of 2022 में है. So हमारे पास कम टाइम है, and then we have started off a batch with April 6. You can join this batch and do your preparation full-fledgedly. Then we also have a batch called Law and Order. This is a batch for long-term students who will be writing the examination in 2024. So you can start your preparation. जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर, और उतना ज़्यादा आप better prepared रहोगे. Also, there's a scholarship test which is happening on the 10th of April at 3 p.m., which is a 1-hour test, 50 questions, जिसमें कि you have a chance of winning Google Mini and different other gadgets and Amazon vouchers. So yeah, this is a free scholarship test for Unacademy. तो आप इसको ज़रूर लेना. आपको एक प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, एक प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपकी वीक एरियाज क्या है. Apart from that, we'll provide you with national level mock tests, sectional tests, topic-wise tests, and everything. And if in case you're one of those aspirants who's just looking for some mock test series, you just want mock tests and nothing else, then also there's an introductory offer where Unacademy is giving you these mock series, mock tests. 25 mocks का आपको एक पैकेज मिलता है. 1 month will cost you 999 and 3 months will cost you 1999. So you can avail this. This is introductory prices. काफ़ी economical है, काफ़ी अच्छे prices में आपको मिल रहा है. So you can just go ahead and look at the quality of the mocks as well. And this is how the mock calendar will look like. This is more important for the CLAT 2022 aspirants. And you should take this because आपको एक leaderboard मिलेगा, आपको दिखेगा where do you stand nationally with respect to all the other students and aspirants, and these questions are designed by top educators, similar level of difficulty to the actual examination, and of course you have chances of winning some attractive Amazon voucher from Unacademy through these mock tests. And like I said in the beginning, आप special classes जो है वो attend कर सकते हो. You can follow me on Unacademy. आपको मेरा Unacademy profile link video के description में मिलेगा. So whenever I create a special class which is free on Unacademy, you can attend that. Okay? So we'll see you in the special classes as well. Now let us start with what we actually want to discuss. The first important thing. Also what we are discussing, the topics that, or these cases or the events that we are discussing is from February 2022. Okay? So February के 3 important legal updates जो हैं वो हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे. So one of the most important one is minority educational institutions and the right to education. जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, right to education जो है, the right to children, the right of children to free and compulsory education, जिसको हम लोग short form में RTE कहते हैं, 2009 का एक लॉ है. ठीक है. So इसमें बेसिकली होता क्या है कि 6 to 14 years के एज के जो बच्चे होते हैं उनको आपको प्रोवाइड करना होता है प्राइमरी एजुकेशन. ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि उन्हें आपको प्राइमरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना है, सो दैट इलिटरेसी जो है हमारे देश में वो कम रहे. Now, right to education is also a fundamental right under Article 21A of the Indian Constitution. ठीक है? So, Article 21A of the Indian Constitution talks about that it's a fundamental right. It's a very basic, inviolable right of every children between the age of 6 to 14 that he shall be provided with a basic level of education at the expenses of the state. ठीक है? तो आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जा सकते हो, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया 2009 में, राइट टू एजुकेशन. सो इसमें ऑफ कोर्स गवर्नमेंट स्कूल्स में तो प्रोवाइड करना ही करना है एजुकेशन, बट इस लॉ के थ्रू ये भी हुआ कि प्राइवेट स्कूल्स को कहा गया कि आप भी 1/4 मतलब 25% ऑफ द सीट्स जो है आप रखोगे. सो 25% ऑफ द सीट्स इन द प्राइवेट स्कूल्स shall be reserved. So गवर्नमेंट ने बोला कि भाई प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर भी एक मैंडेट किया कि आपको भी बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा. You'll have to keep these seats reserved for people or for children who come from humble background. जिनके पास बहुत पैसे नहीं होते, जिनके पेरेंट्स के पास who come from very humble background, उनको भी सेम लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो मिलना चाहिए. ठीक है? Now, so this is a little background about the right to education. Now coming to the case that is at hand, there was this writ petition that was filed by the Delhi BJP leader and lawyer Mr. Ashwini Kumar Upadhyay, who challenged the constitutional validity of Section 1 Clause 4 and Section 1 Clause 5 of the Right to Education Act. Okay? Now what is these sections about? They contain the exclusion of madrasas and Vedic schools from the ambit of right to education. ठीक है? तो बेसिकली मदरसास एंड वैदिक स्कूल्स जो हैं, जो कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं. अब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? सो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर दोज इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर सेट अप बाय द माइनॉरिटी कम्युनिटी. अब माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी हो सकती है? तो बेसिकली माइनॉरिटी को डिटरमाइन करने के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं. एक होता है लैंग्वेज और एक होता है रिलीजन. ठीक है? सो लैंग्वेज और रिलीजन जो है, इन दो के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है कि कोई एक कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी है कि नहीं है. सो फॉर एग्जांपल इंडिया में क्योंकि द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज हिंदू, बिलोंगिंग टू हिंदू रिलीजन, सो हम वी हिंदूज कैन नॉट से दैट वी कैन एस्टैब्लिश अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिकॉज वी आर नॉट माइनॉरिटी, वी आर द मेजॉरिटी. बट एक्सेप्ट हिंदूज, अगर आप देखोगे तो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ज़ोरास्ट्रियंस हो, कोई भी रिलीजन अगर आप लोगे, तो दे बिलोंग टू द माइनॉरिटी कैटेगरी एंड दे हैव अ फंडामेंटल राइट व्हिच इज गारंटीड टू देम थ्रू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, वेयर दे कैन एस्टैब्लिश एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो यहाँ पे वही हुआ कि ये जो एक्सक्लूजन्स ऑफ मदरसाज एंड वैदिक स्कूल्स है, यहाँ पे राइट टू एजुकेशन का जो है एप्लीकेशन नहीं हो रहा था. तो इसी के अगेंस्ट इन्होंने एक पिटिशन फाइल किया अश्विनी कुमार उपाध्याय ने. नाउ इसमें हुआ क्या? They said that the exclusion of these institutions was specifically inserted into 2009 Act by an amendment of August 2012, and earlier a report by NCPCR showed that a disproportionate number of minority institutions or dominance of non-minority category in the minority institutions. So basically then it was shown that एक report जो publish हुई I'm so sorry. Yes. हाँ. So एक report को उन्होंने refer किया wherein they said that there is a dominance of non-minority categories in the minority institutions. कि minority institutions में नॉन माइनॉरिटी लोग जो है वो ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वहाँ पे डोमिनेंस उस चीज़ का ज़्यादा है विच इज़ नॉट एक्चुअली सॉल्विंग द रियल पर्पस ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द राइट टू एजुकेशन का जो विजन था. ठीक है? सो दैट वाज व्हाट द पिटिशन वाज. एंड लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, राइट टू एजुकेशन जो है वो अंडर आर्टिकल 21A के विद इन एज अ फंडामेंटल राइट दिया गया है, which deals with free and compulsory education
to children who are aged between 6 to 14 years in India, and this was inserted, or this was done by the 86th amendment to the Indian Constitution. अब ये जो एक्ट है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट, जैसा मैंने बताया 25% सीट्स के रिजर्वेशन की बात करता है फॉर डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. नाउ डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस में कौन से लोग आते हैं? वो एससीज, एसटीज, सोशली बैकवर्ड क्लास, डिफरेंटली एबल्ड, इस प्रकार के जिस भी कैटेगरी में लोग आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इस कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं उनके लिए इस प्रोविजन को ऐड किया गया दैट children belonging to these categories, this category can also study in private educational institutions, private schools basically. अच्छा, फंडामेंटल राइट की जहां बात करें आर्टिकल 29 एंड 30 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है विथ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड द माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है. सो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का आर्टिकल 30 के अंडर एक फंडामेंटल राइट है where they can establish and administer their educational institutions according to their choice. तो जैसा कि मैंने बताया कि माइनॉरिटी जो होती है वो डिपेंड करती है, माइनॉरिटी डिपेंड्स अपॉन योर लैंग्वेज एंड रिलीजन. सो रिलीजन का तो खैर हमने एग्जाम्पल देख लिया, लैंग्वेज फॉर दैट मैटर. अब जैसे ठीक है, सो जैसे मैं जहाँ मुंबई में पहले रहता था, अंधेरी में, वहाँ पे एक कॉलेज हुआ करता था विच वॉज तुलानी कॉलेज, ठीक है. तुलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स करके है. इट्स अ वेरी गुड रेप्यूटेड कॉलेज इन मुंबई फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स. नाउ तो मैं एक बार ऐसे वहाँ से क्रॉस कर रहा था, आई सॉ दैट वहाँ पे लिखा हुआ था माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. सो आई रेड अ लिटिल अबाउट दैट कॉलेज एंड आई गॉट टू नो दैट इट इज़ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट इज़ और इट हैज़ बीन created by the Sindhi community, which on the basis of language, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंधी नहीं है, on the basis of the language, they have established an educational institution as per their choice. Now, majority of the seats in this minority educational institution is reserved for students who come from the minority ग्रुप. तो अब यहाँ पे सिंधी कॉलेज है तो सिंधी बच्चे जो हैं उनके लिए ज़्यादा रिजर्वेशंस होगा सो दैट दे कैन कम एंड स्टडी इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज. सिमिलरली तो बेसिकली ये हर माइनॉरिटी के लिए, हर माइनॉरिटी ग्रुप के लिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो है वो ये फंडामेंटल, ये मौलिक अधिकार जो है वो देता है कि आप अपने राइट को इस्टेब्लिश कर सकते हो, अपने राइट को क्लेम कर सकते हो एंड आप अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर कर सकते हो, आप अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हो और आप वहाँ पे मेजॉरिटी सीट्स जो है वो रिजर्व कर सकते हो बिलोंगिंग फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू योर कम्युनिटी. लेकिन अब अगर मान लो ये एक, अब इसका एक क्लॉज भी है, जैसे मान लो एक कॉलेज है विच इज़ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बट वो गवर्नमेंट से एड ले रहा है, ठीक है, उसे गवर्नमेंट से एड मिलता है, गवर्नमेंट उसे पैसे देती है, टैक्स एग्जेम्पशंस वगैरह कुछ भी. सो इफ गवर्नमेंट इज ग्रांटिंग सम फंड्स टू दैट कॉलेज, देन दे कैन नॉट हैव दैट सीट, मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. देन उनको सारे सीट्स जो है वो ऐसे सबके लिए ओपन करके रखना पड़ेगा. सो एज लॉन्ग एज दे डोंट गेट मनी और फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे हैव द राइट टू reserve the seats for their community students. But the moment they start getting funds, or if they ask and the government gives that fund, then it will be like, then they cannot function like a minority institution. They will have to open the seats for everyone because government will not give a fund for a particular community. Because like we know, Indian Constitution ये कहता है कि जो government है वो is a secular government, वो religion से अलग है. हमारे लैंग्वेजेस भी जो हैं वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. हमारे गवर्नमेंट जो है वो किसी एक लैंग्वेज को या किसी एक रिलीजन को प्रेफर नहीं कर सकती ओवर द अदर्स. सो दैट इज हाउ द गवर्नमेंट, द स्टेट कैन नॉट डिमार्केट, है ना, दैट वे. सो दिस वाज द फर्स्ट वन. द सेकंड वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज द हिजाब केस. एंड आई एम श्योर कि आप सबने इस केस के बारे में
सुना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल केस जो है वो बना रहा फॉर अ वेरी लॉन्ग पॉइंट इन टाइम, and it finally got concluded where the Karnataka High Court said that hijab is not a essential part of the Islamic practice. Now, not going into whether this is the right interpretation or the wrong interpretation, let us firstly understand that what has happened in this particular case. So, Karnataka High Court का एक full bench था, ठीक है? Full bench का मतलब क्या होता है? There are three types of benches. In fact, four types of benches. एक होता है single judge bench, जिसमें सिर्फ एक जज बैठते हैं हाई कोर्ट में. देन एक होता है डिवीजन बेंच, जिसमें दो जजेस बैठते हैं. फिर होता है एक फुल बेंच, जिसमें 3 जजेस बैठते हैं. एंड उसके बाद होता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसमें 5+ जजेस जो है वो बैठते हैं. अब इसके बाद 5, 7, 9, 11, 13 ऑड नंबर्स में हमेशा चलेगा, ठीक है. तो इसको इसलिए रखा गया है सो दैट कि कभी भी बेंच जो है वो 50-50 में ना डिवाइड हो जाए. सो अगर आप देखोगे तो डिवीजन बेंच को अगर छोड़ दें, जहाँ पे इवन नंबर में 2 जजेस बैठे, बाकी सभी जब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस डिटरमिन होती है तो वो हमेशा ऑड नंबर्स में रखी जाती है, सो दैट कभी भी जजेस 50-50 में, लाइक जजमेंट जो है वो 50-50 में ना बच जाए. Because the purpose of going to the court was to get the things or the dispute resolved, not to create a further dispute between the judges themselves. ठीक है. So इसीलिए तो I thought कि एक बार ये मैं बता दूँ आपको. So a full bench of Karnataka High Court ने एक petition सुना था, which was filed by Muslim girl students who challenged the constitutionality of the state government's ban on. So Karnataka government ने एक ban impose किया that educational institutions में female students, female Muslim students will not be allowed to wear a hijab. Hijab is like a cloth that they put it over their head, and they claim, the Muslim girls were claiming that it is part of their religious practice and they should be allowed to wear that hijab. Now, ये पूरा जो केस था ना वो एक आर्ग्यूमेंट पे अटका हुआ था, as to whether state can justify the ban on the ground that it violates public order. ठीक है. तो आप फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट नहीं कर सकते हो, स्टेट किसी का फंडामेंटल राइट नहीं ले सकता है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस है. वन ऑफ द एक्सेप्शंस इज कि अगर पब्लिक ऑर्डर में कुछ ब्रीच हो रहा है, अगर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने में डिफिकल्टी आ रही है, then of course your fundamental right can be taken away. Now what is the fundamental right with respect to religion is like the fundamental right to your religion is कि आपको कोई भी religion आपके मन का पसंद हो, आप उसको ले लो, आप उसको प्रैक्टिस करो, आप उसको प्रीच करो, पढ़ाओ, प्रोपोगेट करो, लोगों को सिखाओ, लोगों में फैलाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो ये आपका फंडामेंटल राइट है विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन. एंड द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है वो आपके फेथ में, आपके रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी. लेकिन ये आपको एक एब्सोल्यूट ब्लैंकेट राइट नहीं दिया गया है. कोई भी राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है. इट कम्स विथ द प्रोज एंड द कॉन्स. तो अगर आपको एब्सोल्यूट राइट नहीं है तो मतलब आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं. पब्लिक ऑर्डर इज वन ऑफ द grounds on which restriction can be imposed. अब यहाँ पे important ये होता है समझना कि what is public order. तो public order को normally आप equate कर सकते हो public peace and public safety के साथ, कि लोगों के बीच में कितनी शांति बनी रहती है और लोग कितने safe रहते हैं. अगर मैं आज कोई एक ऐसा action करता हूँ जिससे कि से 2 communities के बीच में fight हो जाए, so that is something which is affecting my action is something which is affecting the public order. Now, public order is one of the 3 grounds on which state can restrict the freedom of religion. जो मैं आपको आर्टिकल 25 के बारे में बता रहा था कि all people have the right to or have the right and the freedom कि आप अपना freely profess कर सकते हो, practice कर सकते हो, propagate कर सकते हो religion, लेकिन public order, morality and health इन grounds को बिना violate किए. ठीक है. So public order is also one of the grounds जहाँ पे free speech
को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब आप ऐसे जाके प्रोवोकेटिव बातें करने लगते हो एक स्टेज पे खड़े होके, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अ पर्सन एक्स गेट्स अप ऑन द स्टेज और एक्स को सुनने के लिए 50 लाख पीपल हैव कम, ओके, वो 50 लाख लोग जो है वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सुनने के लिए। एंड देन मिस्टर एक्स गोज ऑन टू से सम वेरी प्रोवोकेटिव थिंग्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तब ये 50 लाख लोग जो है जाके लगेंगे अटैक करने, आर्सनिंग करने, पुलिस स्टेशन को जला रहे हैं, पब्लिक बसेस को तोड़ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टॉप कर रहे हैं। तो ये गलत है, ये पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट कर रहा है, पब्लिक पीस एंड पब्लिक सेफ्टी को अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे केसेस में इस स्पीच को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, है ना। सो अच्छा, एक और बात आती है कि भाई इस सब के बारे में लॉ बना कौन सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, जहाँ पे कि स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू कैन मेक दीज लॉज। सो एसेंशियली द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, कि क्या आपके लिए पब्लिक ऑर्डर होगा और क्या विच माइट वायलेट द पब्लिक ऑर्डर। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है, पावर है, according to the 7th schedule of the Indian Constitution, which deals with 3 lists: List 1, List 2, and List 3. List 1 of the 7th schedule deals with central government के पास क्या क्या पावर है, मतलब पार्लियामेंट क्या लॉज बना सकते हैं। लिस्ट 2 इस स्टेट गवर्नमेंट क्या लॉज बना सकते हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, ये सारे गवर्नमेंट्स क्या लॉज बना सकते हैं। एंड लिस्ट 3 में बोथ ऑफ देम कैन मेक लॉज, ठीक है। लिस्ट 3 हैज सर्टेन एंट्रीज, सर्टेन एरियाज जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकते हैं, लेकिन इट शुड नॉट कोलाइड विद ईच अदर। अगर कोलाइड होता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है वो प्रिवेल करेगा, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन पब्लिक ऑर्डर के ऊपर अकॉर्डिंग टू लिस्ट 2 वो स्टेट्स के पास कंप्लीट पावर है। तो पब्लिक ऑर्डर क्या है नहीं है वो हमेशा कंटेक्चुअल होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन, स्टेट टू स्टेट, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, पीपल टू पीपल। एंड हाउएवर अगर देखेंगे तो कोर्ट्स ने बहुत ब्रॉडली इंटरप्रेट किया है that something which affects the community at large and not certain select few individuals. So that is how public order should be interpreted. 1965 का एक केस था राम मनोहर लोहिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि पब्लिक ऑर्डर जो है, केस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, द कम्युनिटी और द पब्लिक एट लार्ज हैव टू बी अफेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर एक्शन। सो कम्युनिटी एट लार्ज को अफेक्ट होना चाहिए। सो फाइनली ये हिजाब बैन वाले केस में जो है कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया गवर्नमेंट के डिसीजन को, स्टेटिंग दैट द बैन ऑन हिजाब जो है वो ठीक है, वो सही है, बिकॉज इट अफेक्ट्स द पब्लिक ऑर्डर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। नाउ वी कम टू द थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो, enforcing of fundamental duties. So Supreme Court ने एक notice issue किया to the central government and asking to respond to a petition which was to enforce the fundamental duties of citizens, including patriotism and unity of the nation through comprehensive and well-defined laws. तो basically एक petition ये बोला गया कि आप fundamental duties जो है वो enforce कराओ, fundamental duties which is under or which is given or enumerated under the Indian Constitution through Article 51A, जो कि Part 4A है Indian Constitution का। तो यहाँ पे करीब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे लिए, हमारे संविधान में दिए हुए हैं। तो उसमें कहा गया कि भाई पेट्रियाटिज्म, अपने देश के टुवर्ड्स फीलिंग अफेक्शनेट एंड यूनिटी ऑफ द नेशन जो है, इन सभी इस टाइप के फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स कराइए थ्रू वेल डिफाइंड लॉज। एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया एंड सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जो है वो इशू किया कि आप क्या करना चाहते हो। अब अगर हम पहले का, अभी इसका कुछ कंक्लूसिव डिसीजन आया नहीं है, तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज। सो एक रंगनाथ मिश्रा जजमेंट था 2003 का, जहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था that fundamental duties should not only be enforced by legal sanctions but also through social sanctions,
कि भाई आप लीगली तो उनको एनफोर्स कराओ ही कराओ, बट सोशल सैंक्शंस भी कराओ। एंड अगर आप देखोगे तो जैसे हम कभी मूवी देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बोला जाता है कि एक नेशनल एंथम होता है जहाँ पे सबको खड़ा होना पड़ता है। सो इट्स काइंड ऑफ अ सोशल वेलबींग या सोशल प्रैक्टिस है जो हम कर रहे हैं। सो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि खाली लॉ नहीं पनिश करना चाहिए या लॉ के थ्रू आप मत करो, बट सोसाइटी में वो अवेयरनेस लेके आओ जिसके थ्रू की पीपल स्टार्ट following the duties that they are supposed to follow. Then in another case, AIMS Student Union versus AIMS 2001 का जो जजमेंट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स दोनों ही बराबर हैं, आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सिटीजन्स खाली राइट्स क्लेम करेंगे गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट के टुवर्ड्स कोई ड्यूटी नहीं रखेंगे, स्टेट के टुवर्ड्स, इंडिया के टुवर्ड्स कोई ड्यूटी नहीं रखेंगे। नहीं, अगर आपको इंडिया राइट्स दे रही है तो इंडिया जो है वो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप कुछ ड्यूटीज़ को फुलफिल भी करोगे। ड्यूटीज़ लाइक कि आप पेट्रियाटिक रहोगे, आप अपने नेशनल एंथम का, अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान करोगे, आप हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को रिकॉग्नाइज करोगे और उसका सम्मान करोगे, द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह को एक्सेप्ट करोगे। तो इस तरीके के कुछ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप ज़रूर पढ़ना, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। एंड 2 फंडामेंटल ड्यूटीज़ एनफोर्सिएबल नहीं होती है कोर्ट ऑफ लॉ में, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को किया जा सकता है लेकिन आप उसको ओवरलुक भी नहीं कर सकते हो, एंड थ्रू लॉज आप बना सकते हो कि आप इसको थ्रू लॉज आप ऐसा कर सकते हो कि भाई आप एनफोर्स करवाओ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। एंड द वर्ड फंडामेंटल जो कि प्रीफिक्स्ड है राइट्स में और ड्यूटीज़ में, दैट गोज ऑन टू शोज कि भाई दोनों ही इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एकदम मौलिक है। ड्यूटीज़ भी इंपॉर्टेंट है और राइट्स भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सो राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो होती है वो हमेशा साथ में चलती है। अगर आपका कुछ राइट है तो मेरी कुछ ड्यूटी है आपके टुवर्ड्स। सो इफ़ योर राइट इज़, ठीक है, अगर आपका राइट है कि आप सेफली रोड पे चल सको क्योंकि वो पब्लिक रोड है, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको सेफ रखूं, मैं अपने एक्शन से आपको सेफ रखूं रोड में, ठीक है। सो राइट्स और ड्यूटीज जो है वो साथ में हमेशा चलती है, वो दोनों अलग अलग जो है कभी नहीं होती है, ठीक है। सो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज आर लाइक अ वार्निंग टू द पीपल अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, कि आप नेशन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते बाय बर्निंग द फ्लैग, डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी, डिस्टर्बिंग पब्लिक पीस, आप ये सब नहीं कर सकते। एंड देन it also helps in promotion of sense of discipline and commitment towards the nation, कि आप अपने नेशन इंडिया के टुवर्ड्स काफ़ी कमिटेड हो और नेशनल गोल्स को अचीव करने में आप भी अपना पार्ट जो है, एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो दोगे, एंड नॉट जस्ट बी अ mere spectator. So with this we come to an end of this video. Thank you so very much for watching it very patiently. हम लोगों ने आज 3 केसेस के बारे में डिस्कस किया, एंड ऑल ऑफ देम डीलिंग विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So I hope आपको काफ़ी कुछ रिविजन हुआ होगा, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। Please do read more about these judgments and these areas, and don't forget to subscribe to Unacademy Law YouTube channel, and do like and share this video. Thank you so much. This is Vaibhav Prakash signing off. Bye bye.